The Aam Aadmi Party putting the entire blame on the cops there, saying that it was the police that was supposed to act and they didn't. But clearly, very shoddy replies as far as why the speeches did not stop from the Chief Minister and the Deputy Chief Minister, and why did the rally continue despite the fact that this person had been found hanging from the tree. That's right. It is basically a fight between the Aam Aadmi Party, and they are completely blaming it on Delhi police. They're in fact even blaming the BJP for politicizing the issue, but not even once has the party accepted that it was at fault. And very importantly, even when it accepted that there were faults from their side, all they said was with a pinch of sarcasm when they said, of course, Delhi Chief Minister was there. He should have gone. He should have gone, done everything. He should have gone up on the tree. So definitely not only dripping sarcastic comments, but also completely blaming it on the Delhi police, saying that there were no preparations made, that at this juncture, when I constantly asked them why was the rally not stopped, that could have been a measure that could have been taken, but completely the party decided to say that was because the people there could have got more emotional. The people could have in fact gone ahead and created more commotion, and that is why today it is important to realize that the Aam Aadmi Party perhaps has failed to defend its very important crime literally today that has taken place. Well, we just play out what Ashutosh told the media when very certain pertinent questions were asked. Ashutosh resorting to sarcasm. Let's take a listen to what he had to say. Pooja Shali, I'll come back to you. ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे। ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े। ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पे जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने से रोकें। Well, here's the question, pat back to Ashutosh. पूजा शाली, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब मूड होता है तब सड़क के बीचों बीच बैठ के धरना दे देते हैं, तब ऑटो में चढ़ जाते हैं. At that time then they don't think that it does not behove of a chief minister to behave in that manner. But today a man's life was at stake, and this is what they come back and tell you. Is that the response that you expect from the Aam Aadmi Party? It was a rally called by them. It was their workers. They had all come there because the Aam Aadmi Party had called them. So they are responsible for the safety and security of every single person who was present there, and they cannot shirk the blame. The response that has been given by the Aam Aadmi Party is that the individual was critical, that we were told he was rushed to the hospital, and that is why we decided to go ahead with the rally, because if he would have gone in the midst of those people, they were extremely emotional. This could have certainly created more hassle and more problem there at the Jantar Mantar. So definitely the party completely defending, in fact failing to defend as to what was the reason. Delhi Chief Minister was there, Delhi Deputy Chief Minister was there. They could have definitely taken up steps that could have prevented the life of that person. Even if Delhi police was at fault, does it take away perhaps the blame that also falls on the Aam Aadmi Party today? As of now, completely defending their stand. They said they kept asking the Delhi police to do something, but they did not. Back to you. And not just that, you have other leaders who have got the insensitivity to compare a suicide with a bomb blast. And drawing parallels to what happened in Patna and what happened at Jantar Mantar today. I mean, what kind of insensitivity and logic is this? Who's indulging in political blame game and one-upmanship here then? Isn't the Aam Aadmi Party equally guilty, Pooja Shali? Because the question is, if it is your workers, and if it is your people, and they were watching what was happening right there, they say that we tried to help this guy despite the police not showing action, they could have saved this person too. So while they're trying to claim credit for taking him to hospital, they're shirking the blame of not being able to avert what turned out to be the loss of a life. That's right. In fact, the party has blamed the Prime Minister, saying he had also been a part of the rally where some blast had happened. So clearly taking it to that level, clearly making it that direct with the BJP. In fact, joining me right now is Kumar Vishwas. Kumar Vishwas, आपके ऊपर सबसे allegation ये कि पहले आपने incite किया, आपने लोगों को कहा कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है, फिर आपने वेट किया कि उसको उतारिए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते हैं अपनी रैली की. अभी आप लाइव हैं, मैं आपसे यही सवाल क्लियरली फिर पूछ रही हूँ, क्यों रैली नहीं रोकी गई? मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, रोक देते, रैली खत्म हो जाती बात वहीं पे. रैली जिस समय उसको ऊपर चढ़े तब ये भी नहीं पता था कि वो कौन है और वो क्यों ऊपर चढ़े हैं. इससे पहले भी जंतर मंतर
पर रैलियां हुई हैं, हजारों लोग पेड़ पर चढ़कर रैलियां देखते रहे, आप ही लोगों ने कवर करा है, तेरे दिन आपने भी कवरेज चलाई है। लेकिन जब यह है कि ऊपर जो व्यक्ति है वो संदेहास्पद है, वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, वो जान देने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत दिल्ली पुलिस की पुकार लगाई गई। तुरंत कार्यकर्ता गए। वहाँ पे क्यों हल्ला कर रहे हैं, आप नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? आप नीचे वाले लोग, नीचे वाले के लिए भी आपने कहा था, जो नीचे वाले लोग थे जो बार बार केजरीवाल होश में आओ का नारा लगा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बात सुन लीजिए, आप नारा क्यों लगा रहे हैं? आपसे 10 बार मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, फिर मिलेंगे, आपकी समस्याएं बैठ के सॉल्व कर लेंगे। जो गेस्ट टीचर थे, गेस्ट टीचर्स का मुद्दा तुरंत ही विधुड़ी जी संसद में भी उठा रहे थे, तो मैंने ये भी कहा था कि आप यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं, तो इसे भाजपाईकरण मत करिए, हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो ऊपर चढ़ा वो किसान है, गेस्ट टीचर है, कार्यकर्ता है, क्या है, किसी को पता नहीं था। पहली प्राथमिकता थी उसे बचाना। उसे बचाने के लिए हमारे वे कार्यकर्ता जिन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, वे प्राण हथेली पर लेकर पेड़ पर चढ़े, वे भी गिर सकते थे, और उन्होंने उस व्यक्ति को उतारा। और सबसे पहले हमारी सरकार के जितने विधायक थे और हमारे जो स्वास्थ्य के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, वो आरएमएल की तरफ भागे। हम बार बार अपील करते रहे कि किसी प्रकार पुलिस से आप कोई इंटरेक्शन ना करें। आप दिल्ली पुलिस को ब्लेम कर सकते हैं कि ठीक है वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं थी, एम्बुलेंस थी, पर उस किसान की अब डेथ हो गई है। विश्वास, आप पे भी ब्लेम आता है। सारी लीडरशिप थी आपकी पार्टी की, बट यू कंटिन्यू टू गो अहेड जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आपने रैली करी, मुख्यमंत्री स्पीच देते हैं। खुद के चैनल के ट्वीट थे कि वो क्रिटिकल है। हाँ। जब जिस समय रैली समाप्त हुई उसके 7-8 मिनट बाद एक ट्वीट आया। अगर क्रिटिकल भी थे तब भी क्यों इमीडिएटली मुख्यमंत्री छोड़ के नहीं गए? क्योंकि 20-25 हजार लोग जो वहां इतने गुस्से में थे इस घटना को लेकर, अगर कोई भी नेता मंच छोड़कर चला जाता और कहता कि बंद करिए, तो 20-25 हजार लोगों का संभालना, उनका गुस्सा संभालना और भयानक होता। इसलिए बार बार अपील की कि आप लोग आक्रोशित ना हो, आप लोग गुस्सा ना हो, आप लोग शांत रहें, किसान का मुद्दा है, ये लड़ाई आगे तक जाएगी। और हम पूरी किस बात का आक्रोश? कोई मर गया तो कोई गुस्सा क्यों होगा? के लिए आज अपनी माफी मांगने के लिए, टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट दैट यू हैव बीन 125 करोड़ लोगों के सिर पर अपराध है गजेंद्र की जान जाने का। This particular farmer, how come they did not know that he had already died on the way? किसान दिल्ली आकर आत्महत्या करता है, वो 125 करोड़ लोग अपराधी हैं। नाविका वो पूछना चाह रहे हैं हमारे ऑफिस से क्लियरली कि जब वॉलंटियर्स जा सकते थे पेड़ पे, आप तो लीडरशिप थे, आप कम से कम वहाँ पेड़ तक तो जा सकते थे। अपना रास्ता, आपका अगर रास्ता बनाना हो तो कौन रोकता आपके लिए? जब वॉलंटियर्स चार चढ़ गए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री गए, क्यों नहीं आप गए? विश्वास, आप तो वहाँ कितने आधा पौना घंटा आप खड़े बस ये कहते रहे कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्वेश्चन है आपने क्या किया? कार्यकर्ताओं से कहते रहे, पेड़ पर कार्यकर्ता चढ़े और उन्होंने इस प्रक्रिया को टोटल 5-10 मिनट में अंजाम दिया कि वो चढ़े, उतारा और लेकर तुरंत भागे। हम बार बार कहते रहे रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, पहुंचने दीजिए, और सारे कार्यकर्ता जो इस काम के थे उन्हें आरएमएल भेजा गया, स्वास्थ्य सचिव को भेजा गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि गजेंद्र की एक जान गई है, 600 जाने महाराष्ट्र में गई हैं, अभी 300 जाने पिछले 3 महीने में गई हैं किसान की। वे सब किसानों के ध्वनि गजेंद्र ने यहाँ आकर बोल दी। अब तो कम से कम राजनीति बंद करें। आप भी तो राजनीति नहीं कर रहे, आप इसको बीजेपी पे डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता बीजेपी कांग्रेस पे डाल रहे हैं? फिर किस पार्टी? आप यही कह रहे हैं? मैं देश के उन कानून बनाने वालों पर डाल रहा हूँ जिनके रहते किसान इतना निराश है कि वो आत्महत्या कर रहा है। क्या हम उसे भरोसा देते हैं? नहीं, डिडेंट कुमार विश्वास स्टैंड अप ऑन द डायस से कि दिल्ली पुलिस की साजिश है, ये बीजेपी का काम है, बीजेपी के हथकंडे हैं। हम भूमि अधिग्रहण पे बाद में बात कर लेंगे, कुछ नहीं होके जा रहा है। वहाँ पे स्टेज पे कह रहे थे तो साजिश है, आपको भेजा है कि जिसने भी भेजा है वो उतर जाओ। आप ही गेस्ट टीचर्स को कह रहे थे, आप ये कह रहे हैं, आपने उसको नहीं बोला। गेस्ट टीचर, आप अपनी फुटेज दोबारा चलाइए। बार बार ये बोला ऊपर क्यों खड़े हो, नीचे उतर जाओ। वो तो जो कार्यकर्ता जो बाद में चढ़ रहे थे और ज्यादा, उनसे मैं कह रहा था भाई जो इनको लाने वाले हैं वो ले आओ, बाकी लोग ना चढ़े। उनके उतरने के बाद भी लोग चढ़ गए थे, हम उनसे भी कह रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है विश्वास है, आपके इवेंट में किसी की डेथ हो गई, आप कितना भी डिफेंड करेंगे? दुखद है, हम लोगों के लिए जीवन का पिछले 5 सालों से हम आंदोलन चला रहे हैं, आज तक पत्थर नहीं फेंका गया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने जान दी है, तो कष्ट का कारण तो है। मैं ऐसे कैसे कह दूं? मैं संबित पात्रा नहीं हूं कि मैं 45 मिनट ये बोलूं कि भाजपा ने ऐसा कर दिया। Distract attention away from the fact that Arvind Kejriwal was being booed by another set of people who were there in the audience. They were booing Arvind Kejriwal. That rattled the Aam Aadmi Party, which is why they tried to distract attention away from the rally itself, and they continue to talk about don't get angry, and continue to buy time at that point. That's right, Nanika. That's in fact a very important point. Fact यही है कि क्यों आप लोग ये नहीं रियलाइज किया वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप था, चाहे वो गेस्ट टीचर्स का था, चाहे किन्हीं और का था, जो एक तरह से बू भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को कि वहाँ एक ऊपर इंसान क्रिटिकल है, शायद उसकी डेथ भी हो गई है, और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं है। वहाँ एक सेक्शन था उस ऑडियंस में जो काफी दुखी भी था, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल होश में आओ तो उनको पता था कि ऐसा होगा, फिर केजरीवाल होश नहीं, अगर वो अपने भी कुछ मुद्दे लेके आए थे, लेकिन वो जो लोग थे, क्यों मुख्यमंत्री वहाँ बैठे? उनसे क्या कहा आप? उनसे क्या कहा? उनसे क्या कहता 10 बार आपकी मुलाकात हो चुकी है, 20 बार और कर लेंगे, पहले किसानों की बात कर लें। उन्होंने लिखा था केजरीवाल होश में आओ, अपने वादे पूरे निभाओ। तो उनके ब्लैक फ्लैग की वजह से कैसे रोका जा सकता था? उनसे तो ये कहा जा रहा था सुन लीजिए, बात समझ लीजिए और तुरंत कार्रवाई। मैं फिर कह रहा हूं,
अब मैं आपसे सवाल करूं, लाइव देख रहे हैं टाइम्स नाउ के, आप में से कोई क्यों नहीं चढ़ा था कैमरा, कोई क्यों नहीं चढ़ा छोड़ के? ये ब्लेम यही मैं कह रहा हूं, यही तो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी। आप दिल्ली पुलिस को ब्लेम करिए, आप बीजेपी को ब्लेम करिए। किसके वॉलंटियर्स पेड़ पे चढ़े थे? गजेंद्र के साथ ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ऑलरेडी पेड़ पे थे। They all acted only once he had hung himself. Kumar Vishwas. Pooja, that is the That's right, reality. we can just see Kumar Vishwas. He's just left. I think he doesn't want to take more questions, but he's just said the blame is on the Delhi police. The blame is also now on the media persons because the reporters were there. Why didn't the reporters go on the tree? So clearly, as we can see, it is a blame game. The BJP government is. No, here's the thing, Pooja, because the Aam Aadmi Party has to answer this. Had anybody tried to intervene and try to get these AAP volunteers down, including the likes of Gajendra Singh, Aam Aadmi Party would have said that somebody is trying to disrupt their rally. Somebody is trying to intervene and interfere with their volunteers. That's what they would have done. They would have played politics there also. So the onus is on the AAP volunteers because there were other people on that tree with Gajendra Singh. They were watching what was happening. But they didn't stop. He kept calling for half an hour, 45 minutes for the Delhi police. But had one constable come there, we are going to ask questions of the Delhi police. But this is what would have happened. They would have then alleged a conspiracy to try and derail the entire rally. They would have said that somebody is doing a charade. So the Aam Aadmi Party would have played politics both ways. So they have to shoulder the blame.